سیلاب کی تباہ کاریوں کی صورت میں جس بڑے چیلنج کا سامنا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر سیلاب متاثرین کا ہاتھ تھامنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کمبر شہداد کوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ کے علاقے کمبر شہداد کوٹ جاتے ہوئے دوران پرواز سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ کمبر شہداد کوٹ میں وزیر اعظم کو ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اداروں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کی عمران نیازی کی انتہائی قابل مذمت مہم ہر روز نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ حساس پیشہ ورانہ امور کے بارے میں اور مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف اب وہ براہ راست کیچڑ اچھالتے اور زہریلے الزامات لگا رہے ہیں۔ واضح طور پر ان کا مضموم ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا اور کمزور کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ مسلح افواج شہادتیں دے رہی ہیں لیکن دوسری جانب ان کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آپ پبلک میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرمی چیف محب وطن ہے یا نہیں؟ آپ کس جانب جا رہے ہیں؟ کیوں آئینی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر عدالت سے کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہ رکھیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے عمران خان کی لائیو تقریر پر پابندی کے پیمرا آرڈر کے خلاف درخواست پر دوران سماعت ریمارکس۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نیوکلیئر سپلائر گروپ کی گائیڈ لائنز پر پوری طرح عمل پیرا ہے۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کا اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جانی اور مالی نقصان کے تازہ اعداد و شمار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 24 افراد جاں بحق۔ بارش اور سیلاب سے اموات کی مجموعی تعداد 1314 ہو گئی۔ 16,82,726 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ 7,50,405 مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ بی آئی ایس پی کے تحت متاثرین میں 11 ارب 23 کروڑ 25 لاکھ سے زائد کی رقم تقسیم۔ امریکی وفد کا پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ پاکستان کی تاریخ میں سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ حکومت متاثرین سیلاب کی امداد اور بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے۔ امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کا ٹویٹ۔ افواج پاکستان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سول اداروں کی معاونت میں مصروف۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہیلی کاپٹر کے ذریعے مزید 479 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ راشن اور ادویات متاثرین تک پہنچائی گئیں۔ عالمی برادری سیلاب زدگان کی مدد میں پیش۔ قطر اور متحدہ عرب امارات سے مزید 3 پروازیں سامان لے کر پہنچ گئیں۔ جاپان اور یونیسیف کی طرف سے بھی 2 طیاروں کی کراچی آمد۔ خیمے، ادویات اور ضروری سامان شامل۔ پاکستان کا مشکل وقت میں تعاون پر عالمی برادری سے اظہار تشکر۔ فاکس نیوز کی امریکی فلاحی اداروں اور شہری تنظیموں سے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل۔ پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ملک کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ معروف اینکر ٹام فٹز جیرلڈ۔ ہمیں انسانی جانیں بچانا ہے، پناہ گاہ فراہم کرنا اور بے گھر افراد کی مدد کرنے کی اشد اور فوری ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو زیادہ مدد کرنا ہوگی۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کی پروگرام میں گفتگو۔ کرونا سے مزید 2 افراد کا انتقال۔ 119 افراد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 13,735 ٹیسٹ کیے گئے۔ 190 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.38 ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ صحت۔
पाक फजाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने सितंबर सन 1965 की जंग में कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजात पर मबनी मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में 5 सितंबर सन 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के का अहवाल बयान किया गया है। innings and just high and not long enough. Good catch. Well done. एशिया कप का इंतहाई सनसनीखेज मैच, पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुपर 4 मरहले के अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार परफॉर्मेंस। ग्रीन शर्ट्स ने 182 रन का हदफ 19.5 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज के दरमियान 73 रन की शिराकत। रिजवान की निफ सेंचुरी 71 रन बनाए। मोहम्मद नवाज के 20 गेंदों पर 42 रन। मोहम्मद नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी बरकरार। इवन के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। शाबाश टीम पाकिस्तान, आपने कौम के दिल जीत लिए हैं। शानदार फतह पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। पाक फौज की भी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। हम सबको पूरी क्रिकेट टीम पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। कौमी टीम की कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मुबारकबाद। आफत के दौरान हमें खुशियां और चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने पर आपका शुक्रिया। शाबाश टीम पाकिस्तान। मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की भी कौमी क्रिकेट टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। एशिया कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी पर मुल्क भर में और बैरून मुल्क पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन पर शायकीन मैच से लुत्फानंदोज होते रहे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज और शादाब खान की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जीत पर भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में शानदार जश्न। श्रीनगर में सैकड़ों नौजवान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते बाहर निकल आए। मिठाइयां तकसीम की। श्रीनगर समेत कई शहरों में पटाखे, जबरदस्त आतिशबाजी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज आराम का दिन। सुपर 4 मरहले का तीसरा मैच कल भारत और श्रीलंका के माबैन खेला जाएगा। टूर्नामेंट पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। सात बड़े सनती ममालिक के ग्रुप G7 के वज़राए खजाना का आलमी मंडियों में फरोख्त किए जाने वाले रूस के तेल की कीमतों को मुंजमद करने के मंसूबे पर इत्तफाक। किसी भी मुल्क की तेल की कीमतें मुंजमद करने की ऐसी मिसाल माजी में मौजूद नहीं। इस इकदाम का मकसद इस सरमाए को महदूद करना है जो रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में लगा रहा है। कनाडा के सूबे सस्कैचुअन में छुरा घोंपने के 2 वाक़यात, 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का वाक़े पर इज़हार अफसोस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों की सूरत में जिस बड़े चैलेंज का सामना है उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। हमें सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन का हाथ थामना है। कम्बर शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर इस आफत का मुकाबला करने के लिए मरबूत इक़दाम कर रही है। हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए वफाक की जानिब से फराहम की जाने वाली 28 अरब रुपए की ग्रांट को बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों को मजीद ग्रांट NDMA से मुशावरत के बाद दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुतासरा इलाकों में 25,000 रुपए फी खानदान दिए जा रहे हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमदादी रकूम मेरिट, इंसाफ और शफाफियत की बुनियाद पर तकसीम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाके कंबर शहदाद कोट पहुंचे, जहां उन्हें ज़िली इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि कंबर शहदाद कोट इन शदीद मुतासरा इलाकों में शामिल है, जहां सैलाबी पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। केथर रेंज में मतवातर बारिशों और बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी के बायस ज़िले की 7 तहसीलें ज़ेर आब आ गईं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सैलाब से ज़िले में 22 अमवात हुई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि निकासी आब के लिए मज़ीद मशीनरी दरकार है। सैलाबी पानी से चावल की 95% फसल तबाह हो गई है। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया कि ज़िले में 230 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां मुतासिन को खैमे, खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि वबाई अमराज खुसूसन गैस्ट्रो, मलेरिया और डायरिया से बचाव के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत मुसल्लह अफवाज रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाके कंबर शहदाद कोट का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, जबकि कंबर शहदाद कोट उन मुतासरा इलाकों में शामिल है जिसे बलूचिस्तान और सिंध से आने वाले सैलाबी पानी ने सबसे ज्यादा मुतासर किया है। जिला की 7 तहसीलें हैं जो सैलाबी पानी से बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरान परवाज़ सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर से सखर जाते हुए दौरान परवाज़ सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात और सैलाबी पानी की सूरत हाल से भी आगाह किया गया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के सिलसिले में सखर पहुंचे तो हवाई अड्डे पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पब्लिक वर्क्स की बहाली के लिए लगन से काम करने वाले कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरा बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर मच्छ आयशा ज़हरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम और मजदूरों से मुलाकात हुई। NHA और मजदूरों ने लगन से शाहराहों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान नियाज़ी का इदारों को बदनाम करना और नफरत अंगेज बयानियां हर रोज हद से तजावुज़ करता जा रहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब वो मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत के खिलाफ बराह रास्त कीचड़ उछालने में मुलव्विस हैं। इमरान नियाज़ी का वाज़ेह एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना है। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किसी सियासी लीडर का पॉपुलर होना उसे कानून से मावरा नहीं करता। आइन के खिलाफ बात करने वालों की आवाम गिरफ्तारी चाहती है। जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान के बयानात काबिल मज़म्मत और काबिल गिरफ्त है। जिस शख्स को ये पता न हो कि पाकिस्तान जब बना था उसकी आबादी 40 करोड़ थी या 4 लाख थी, 40 लाख थी, इसको कुछ पता नहीं, और फिर ये कहे कि जनाब मैं कोई प्याज टमाटर आटे के लिए नहीं आया था, तो फिर आया था पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हर रोज़ इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जलसे से खिताब करते हुए पाक फौज और उसकी क़यादत को बिला वजह और गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर में आला सतह की तकरीरों के हवाले से नुक्ताचीनी की, जिसको माहिरीन रियासती इस्तेहकाम के खिलाफ करार दे रहे हैं। इक़्तिदार से बाहर होने के बाद इमरान खान इदारों के खिलाफ मुसलसल हर्ज़ सराई कर रहे हैं। वो समझते हैं शायद इस तरीके से इदारों को दबाव में लाकर अपना मकसद हासिल कर लेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने राबता किया है हामिद मीर से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से तकरीबन हर रोज़ ही हम ये देखते हैं कि तकारीर में इदारों को निशाना बनाया जाता है, चाहे वो एडिशनल जज को धमकियां देने का मामला हो या फिर इदारों के ऊपर कीचड़ उछालने का। इमरान खान हर दफ़ा अपनी तकरीर में आवाम को गुमराह करने की कोशिशों में मुलव्विस हैं।
बिल्कुल, और गुज़िश्ता रोज़ भी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने पाक फ़ौज और उसकी क़यादत को बिला वजह और गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाया है। अपनी तकरीर में आला सतह की तकरीरों के हवाले से उन्होंने नुक्ताचीनी की, जिसको माहिरीन रियासती इस्तेहकाम के खिलाफ करार दे रहे हैं। इक़्तिदार से बाहर होने के बाद इमरान खान इदारों के खिलाफ मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद इस तरीके से इदारों को दबाव में लाकर वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हर रोज़ इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस वक्त करीबन 3 से 4 मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो उनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जारी हैं। उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त हम बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो हालिया जो उनका बयान आया है गुज़िश्ता दिन एक जलसे के दौरान, उसके ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और जो माहिरीन हैं सियासी और इस समाजी हवाले से वो इस बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की एक साजिश की जा सकती है। जबकि इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की, पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये एक साजिश का अंदिया भी हो सकती है। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर जो हैं मियां जावेद लतीफ़, उन्होंने भी इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक साजिश है, जिसके तहत वो मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ जलसे जुलूस करके उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुतनाज़ा इदारों के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ दिया हो, जो इससे मुस्तस्ना हो। इसके अंदर अदलिया भी शामिल है, इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है और इसके अंदर सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। बिल्कुल, पाक फ़ौज यकीनन हमारा फ़ख्र है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से पाक फ़ौज और इसकी क़यादत को बिला वजह और गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब खान और उनसे भी बात करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान मनसब से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो इमरान खान की जो दरख्वास्त थी पिमरा के जानिब से शोकाज नोटिस जारी होने की, उसको तो अदालत ने आज समाअत के बाद मुख्तलिफ जो पिमरा के वकील और इमरान खान के वकील के दलाइल सुनने के बाद जो है सब दरख्वास्त को निपटा दिया है। लेकिन इस समाअत के अंदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क किए। तो ये कहना है कि हर कोई आइन के मातहत है, हर किसी को आइन का ख्याल रखना है। एक तरफ मुसल्लह अफवाज शहादत दे रही है तो दूसरी तरफ उनका मोराइल जो है वो डाउन किया जा रहा है। और इस वाले से चीफ जस्टिस ट्रिब्यूनल ने इमरान खान के वकील जो बैरिस्टर सैफ हैं उनसे कहा कि आपकी मौक़िफ़ की जानिब से भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं। आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहब्ब वतन है या नहीं? आप किस तरफ जा रहे हैं? क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है? जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं इस पर अदालत से किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को न रखें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पिमरा सिर्फ एक शख्स के लाइव तकरीर पर पाबंदी नहीं लगा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जिस तरह के बयानात आप दे रहे हैं, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, आपके इस गैर जिम्मेदाराना बयानात से दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है? जो बयान इमरान खान ने पब्लिक में दिया, क्या वो आर्टिकल 19 के जुमरे में नहीं आता? पिमरा के वकील ने इसके बाद जो है अदालत को बताया कि जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था उसका मकसद सिर्फ डिले करना था और हमारी डायरेक्शन जो है किसी खास शख्स के लिए नहीं थी। टीवी पर चीजें ताकीद से चलाने पर उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो वो पाबंदी कैसे नहीं होगी? क्या कोई कह सकता है कि पाक फौज इस मुल्क के मुहब्ब वतन नहीं है? अदालत ने पिमरा के वकील की जानिब से जो हिदायत थी उसके ऊपर मुतफिक होने पर जो है दरखास्त निपटा दी थी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाइव तकरीर पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान आपका। खबरनामे का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली।
वज़ीर-ए-आज़म की कौम से अतियात की अपील। हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सीनियर तजियाकार और एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़ सलमान गनी ने कहा है कि इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पाक फौज के डिसिप्लिन और इदारे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन, यहीं पर कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। वजारत खारजा के स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवीजन और नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी ताउन के जरिए स्ट्रेटेजिक तिजारती कंट्रोल के फ़रोग़ के हवाले से 2 रोज़ा इस्लामाबाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और न्यूक्लियर पार्क के पुरअमन इस्तेमाल को फ़रोग़ देता है। वज़ीर ममलकत का कहना था कि पाकिस्तान की तवानाई की पैदावार को 2050 तक 50,000 मेगावाट पर पहुँचाने का हदफ है। We hope that this will be able to assist in deliberating on existing as well as, and even once again want to emphasize it even more, the emerging challenges in strategic trade controls, such as rapid developments in science and technology, including biotechnology, artificial intelligence, cloud computing, 3D printing, and autonomous weapon system. We certainly wish to explore opportunities for collaboration across the entire spectrum of international trade of dual-use goods and sensitive technologies. वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात कर रही है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोट चट्टा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि मुतासरीन के लिए पीने के पानी का मुनासिब इंतजाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हर मुतासरा शख्स तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि ये सियासत का नहीं, आवाम की खिदमत का वक्त है। देखा जाए कहाँ पे कितने मकान गिरे हैं, कहाँ पे क्या मसाइल दरपेश हैं। मैं जब ये बस्ती जलालानी आ रहा था रास्ते में तो हमने देखा कि यहाँ पे खेमों की कमी है, लोगों के पास खेमे मौजूद नहीं हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सरदार जमाल खान लगारी साहब की गुजारिश पर मुझे कहा कि मैं यहाँ आपके पास खुद हाजिर हूँ और आपके दुख दर्द में शरीक होकर ये देखा जाए कि आपकी इमदाद किस तरह से की जा सकती है। नाज़रीन, यूं तो सैलाब ने पूरे सिंध को अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन कई इलाके ज़ेर आब भी हैं, जबकि दादू के इलाके खैरपुर, नाथन शाह और यूनियन काउंसिल अन्नड़पुर वाहिद शहरी आबादी है जो सैलाबी पानी में डूब गई है। जिला दादू के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं शिराज अली डाहरी की इस रिपोर्ट में। हालिया सैलाबी सूरत हाल से जहाँ लाखों अफराद बेघर और कई अजला बराह रास्त मुतासर हुए, वहीं ज़िला दादू का शहर खैरपुर नाथन शाह मुकम्मल डूब चुका है। 60,000 अफराद आबादी पर मुश्तमिल शहर में 8 से 12 फीट पानी मौजूद है।
ज़्यादातर ख़ानदान महफूज मकामात पर नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन 4 से 5 हज़ार अफराद अब भी अपने घरों, दुकानों और सामान की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। खैरपुर नाथन शाह के एतराफ़ में कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। जो लोग इस वक्त खैरपुर नाथन शाह में मौजूद हैं, उन्हें खाने पीने की किल्लत का सामना है। शहर के तमाम मार्केट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स जहां नज़र जाए सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ यूनियन काउंसिल उनड़पुर के एतराफ़ में 10 किलोमीटर तक सैलाबी पानी 10 से 12 फीट तक मौजूद है। कई मकानात गिर चुके हैं। इन इलाकों तक रसाई का वाहिद ज़रिया भी सिर्फ कश्ती है, जहां इमदाद पहुंचाने और लोगों को रेस्क्यू करने की अशद ज़रूरत है ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। तबाह करे छॾियो सॼो घर घाट ॿुॾी आहे न, ॿुधई गाह माण्हू मालाया ॿुॾी आहे न, सॼो जेको आहे सो काॿाड़ो सॼो ख़तमु थी वियो आहे। सभु जेके आहिनि पाणी हेठि अची विया आहिनि, वेंदे तव्हां हलिया अस्पताल ताईं, हाई स्कूल, गर्ल्स मिडिल स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, ओड़ो पाड़ो सॼो जलानी पाड़ो मुकमिल तौरु पाणी हेठि अची चुको आहे। माण्हू पंहिंजी मदद पाड़े जरा घटियूं ॿधनि था, पर पाणी जेको तेज़ी सां जेको आहे फुटनि पहिरां जहिड़ो त चढ़े पियो। सैलाबी रेलों से ज़िला दादू के जोही और मेहर शहर के चारों इतराफ पानी भर गया है और हज़ारों अफराद इस वक्त भी इन शहरों में मौजूद हैं। राधन, प्यारो स्टेशन, सीता रोड और फुलजी के करीब सैलाबी पानी तेज़ी से मज़ीद बढ़ रहा है। मुतासरीन की बड़ी तादाद सड़कों के एतराफ़ में खैमे लगाकर अपने माल मवेशियों और बच्चों के हमरा इंतहाई कठिन और दुश्वार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद सारी रात मवेशियों और बच्चों का ख्याल रखते हुए जागते गुजारते हैं। अपने मुस्तकबिल से बेखबर जिनके घर गिर गए, जो कुछ था वो पानी में बह गया, इस उम्मीद पर हैं कि जल्द सैलाबी पानी कम हो और ये लोग अपने घरों को वापस जा सकें। हालिया सैलाबी सूरत हाल में ज़िला दादू शदीद मुतासर हुआ है। खैरपुर नाथन शाह शहर मुकम्मल ज़ेर आब है और अब भी कई ऐसे अफराद हैं जिन्हें रेस्क्यू और मदद की ज़रूरत है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, दादू। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की दादू खुसदार ट्रांसमिशन लाइन बहाल कर दी गई है। ट्रांसमिशन लाइन की बहाली से वस्ती बलोचिस्तान के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। ताहम सिब्बी से कोयटा ट्रांसमिशन लाइन पर बहाली का काम 10 सितंबर तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। सिब्बी से मच ट्रांसमिशन लाइन पर भी बहाली का काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की सप्लाई की बहाली को खुद मॉनिटर कर रही हैं। इस हवाले से उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी पेश की जा रही है। सिंध में सैलाब से लोगों को बचाने के लिए बंद और मुख्तलिफ रुकावटें लगाई जा रही हैं। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के तालुका सुकरन में रुकने असम्बली सिंध अली हसन जरदारी ने भी बरवक्त बचाओ बंद बनाकर नवाबशाह एयरपोर्ट और बख्तावर कैडेट कॉलेज के साथ साथ शहरी आबादी को भी डूबने से बचाया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से, जो इस वक्त सकरन में ही मौजूद हैं। ज़ीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नवाबशाह के ताल्लुके में इस वक्त जहाँ पे ना सिर्फ लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, इमदादी सरगर्मियाँ दी जा रही हैं, बल्कि उनको बंद बांध कर भी मज़ीद सैलाबी रेले से बचाया जा रहा है। इस वक्त भी हम जहाँ मौजूद हैं वो एक ज़िला है, पीछे नज़र आ रहा होगा, एक बंद जो है वो बनाया गया है ताकि मज़ीद शहर को डूबने से बचाया जा सके। इस वक्त तमाम जो MPAs हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे को चेयरमैन यहाँ के मैंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पे हम रात दिन मुसलसल 14 तारीख से यहाँ ऑन ग्राउंड हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन ग्राउंड हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और रिलीफ भी कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फलाही तंजीमें, हमारी पाक फौज, हम सब जुड़े हैं, सब अलर्ट हैं। अब हमारे पास 2 सूरत हाल हैं जो पैदा हुई है। एक तो ये हुई बारिश की सूरत हाल, दूसरा अपना रिवर में बहुत पानी आ गया है, वहाँ भी लोग नकल मांगानी करके बंदों पे आ रहे हैं। उनको पाक आर्मी, सिविल इंतजामिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिलके देख रहे हैं। ये थे हमारे साथ अली हसन जरदारी साहब जो कि PS ठट्टा के हमारे रुकने सूबाई असम्बली हैं और इस वक्त तमाम MPA जो है अपने होम ग्राउंड पर हैं, अपने अवाम के साथ हैं, उनको रिलीफ के साथ साथ उनको बचाने के लिए बंदों को भी बंदोबस्त कर रहे हैं और निकास के पानी के निकास का भी मुकम्मल इंतजाम कर रहे हैं। सिंध के सैलाब से मुतासर इलाके मेहड़ को बचाने की कोशिशें जारी हैं। मेहड़ शहर को बचाने के लिए रिंग बंद बांधा जा रहा है। इलाके के लोगों को पाक फौज के जवान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ गुलाम नबी चानियों से। जी गुलाम नबी, आगाह कीजिएगा। इस वक्त में मेहड़ के करीब जो है
रिंग बंद दिया गया है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आपको बता चलूँ कि नाज़रीन, सक्खर में सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए दरियाए सिंध के किनारे अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कायम टेंट सिटी में फील्ड हस्पताल कायम किया गया है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद ज़िला सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती इक़दामात के साथ साथ समाजी और फलाही तंजीमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इन इलाकों में वबाई अमराज रोकने के लिए मुख्तलिफ तिब्बी कैंप्स कायम किए गए हैं। डिस्प्लेस लोग हैं, उनमें जल्द की बीमारियां और पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह हमने ये फील्ड अस्पताल बनाया है, ये दरिया के किनारे पे है, सामने अल्फ कच्चा है। और इसी फील्ड अस्पताल में हमारे पास जो बच्चे डिहाइड्रेटेड होकर आते हैं, उनको हम उधर सुला के बाकायदे ड्रिप से ये वो हर चीज़ उनको फराहम कर रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। हमारे पास जो अभी तक डेटा आई है कल रात तक, उसमें ये है कि 600 के करीब एवरेज मरीज़ हमारे पास रोज़ाना आ रहे हैं। असांजा ॿार सफ़ा तबियत बेहतर ख़राब हुई, हाणे सही इलाज महिरबानी आहे, दवा बवा हले थी। वकड़ भी पहन था किना किना, उल्टी भी आवां ते अची मोटी भी वञे, आई न बुखार भी तेज़ 3 ॾींहं खां वठी करे मानी टुकरी निंड भी न कई आहे, 3 ॾींहं 3 रातियूं। वबाई अमराज के बचाव के लिए भी इस तरह के इक़दामात इंतहाई बेहतर होते हैं। टंडोलायार शहर के 80% इलाके से इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया है और वहां अब जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। जिला इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से दही इलाकों में इमदादी काम को तेज कर दिया गया है, वहां पर टेंट लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से हमें बता रहे हैं टंडोलायार से हमारे नुमाइंदे सुलेमान सुनहड़ो। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। ज़िला टंडोलायार की बात करें तो ज़िला टंडोलायार शहर का 80% इलाका इस वक्त पानी से साफ़ हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो चुका है। चंद इलाकों में अभी भी पानी बाकी है जहां निकासी का अमल जारी है। जबकि देही इलाके की बात करें तो देही इलाके का 90% इलाका अभी भी पानी के जद में है और यहाँ लोगों की मुश्किलात में अभी कमी नहीं आई, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज की जानिब से दही इलाकों में अब इमदादी कामों में भी काफ़ी तेज़ी आ गई है। बहुत से इलाके इस वक्त हैं जहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और वहाँ पर जो है वो काफ़ी टेंट लगा दिए गए हैं और उनको राशन भी फलाही तंजीमों की तरफ से भी दिया गया है। जबकि हम इस मकाम की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों PTV ने इस इलाके की निशानदी की थी और पाक फ़ौज की जानिब से इनको इमदाद मुहैया कर दी गई, टेंट मुहैया कर दिया गया। तो PTV यहाँ इनकी आवाज़ बनी और पाक फ़ौज इनका सहारा बनी है। बहुत शुक्रिया सुलेमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सैलाब मुतासरा तमाम इलाकों में पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया बाहम मिलकर इमदाद व बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। पाक फ़ौज बलूचिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में इमदादी अशिया की फराहमी के साथ साथ मवासलाती राब्तों की बहाली में भी इंतज़ामिया की मदद कर रही है। स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न 442 के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर फैसल सऊद की सरबराही में मेडिकल रिलीफ टीमें दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। फौजी जवानों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन पर दुश्वार गुजार पहाड़ी मकामात पर कई किलोमीटर पैदल चलकर फील्ड हस्पताल कायम किए हैं। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के ताउन से रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन और तिब्बी सहूलियात फराहमी में खिदमत को भरपूर अंदाज से अवामी हलकों में सराहा जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने सैलाब से मुतासरा अजला जाफराबाद सोहबतपुर का दौरा किया है। चीफ सेक्रेटरी ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के साथ नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा अफराद से मुलाकात की। सैलाब मुतासिन की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी ने मुतासिन को फौरी तौर पर राशन की फराहमी यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए जहलों में भी फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रही है। तफसीलात के लिए नईम अख्तर भट्टी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए मेजर मोहम्मद अकरम शहीद पार्क में इमदादी कैंप लगाया गया है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद एहतियात जमा करवा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के फ्लड रिलीफ कैंप में जेएलएम के अवाम बड़ी तादाद में खाने पीने की चीज़ें, जिनमें पकाने का तेल, घी, चावल, आटा, दालें, खजूरें, चाय, दूध और मेडिसिन अतिया कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जेएलएम के अवाम बढ़ चढ़ के अपने सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की इमदाद कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोबारा आया हूँ, पहले भी सामान दे के गया हूँ, अभी दोबारा भी इधर ही आर्मी के पास इसलिए आया हूँ कि इंशाल्लाह ये मुतासरीन के पास पहुँचेगा। तो आर्मी हर जगह तकलीफ हर जगह बर्दाश्त कर, जितना भी औखा टाइम आया सी तकलीफ की थी ऐसी। मेरा सेंटर अहमदाबाद है, समझ देखें मेरा जितना तकलीफ हुई है ना उतना साढ़े जमाने काम आए। हुब्बुल वतनी से सरशार शहरी कैंपों में खुश खुराक, कपड़े और जूते भी अतिया कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए मुल्क भर से किसी भी जगह से अस्करी बैंक में नकद रकम भी जमा करवा सकते हैं। और अजीम सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाके महड़ को बचाने की कोशिशें जारी हैं। महड़ शहर को बचाने के लिए रिंग बांध दिया जा रहा है। इलाके के लोगों को पाक फौज के जवान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ गुलाम नबी चाणियों से। गुलाम नबी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त में महड़ के करीब जो है बंद दिया गया है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आपको बता चलूँ कि महड़ के करीब जिन्हें भी जो देहात हैं वो जो है सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। तकरीबन जो आबादियाँ थी यहाँ पर जो है तकरीबन 40 से 50 साल से जो है यहाँ पर आबादियाँ कायम थी, शहरी मुकीम थे। तो सैलाब की वजह से उनके जो घर हैं वो मसमार हो चुके हैं। तमाम जो अफराद हैं वो अभी भी जो है अपने घरों में मौजूद हैं। उनको जो है पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। उनको जो है वहाँ पर जो है पहुँचकर उनको बोट के ज़रिए यहाँ पर जो है महफूज जो मकामात है वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। महड़ को जो है बचाने के लिए उनके चारों अतराफ में रिंग बंद जो है बांधा गया है, ताकि ये जो पानी है वो महड़ शहर में दाखिल ना हो सके। ताहम जितने भी जो देही इलाके हैं वो सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं महड़ के जो करीब गांव हैं वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। जितने भी अफराद को इस जो है एरिया में लाया जा रहा है, वहाँ जो टेंट सिटी भी कायम किए गए हैं, उनको जो है हुकूमत की जानिब से खेमे, तंबू और दीगर जो अशिया खुर्दनोश है वो भी फराम की जा रही है। इस वक्त जो है महड़ शहर जो है ताल जो है महफूज है। बड़ी तादाद में शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है महड़ के चारों अतराफ में जो रिंग बंद है वो बांधा है, ताकि जो पानी है वो शहर में अंदर दाखिल ना हो सके। ताहम जो लोग अंदर फंसे हैं उनको जो है पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं और महफूज जो मकामात है वहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम नबी चांडी तफसीरात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया करिए। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे नाज़रीन। सीनियर तज्ज़ियाकार और एग्जेक्टिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़ सलमान गनी ने कहा है कि इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पाक फौज के डिसिप्लिन और इदारे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान का अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अंदरूनी डिसिप्लिन और मेरिट की बालादस्ती इसकी असल पहचान और ताकत है। लिहाजा इसकी शोहरत और साख पर असरअंदाज होने की कोशिश दुश्मन की तो हो सकती है, किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर नवंबर में अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये दरअसल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के डिसिप्लिन और साख पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तानी फौज का अदारा पाकिस्तान की असल ताकत है और पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के सद्देबाब और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम में इसका बुनियादी किरदार है और कौम हमेशा अपनी फौज की पुष्ट पर रही है। मैं समझता हूं कि रियासती अदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की मुनज़्ज़म साजिश एक बैरूनी एजेंडे के तहत है और पाकिस्तानी अवाम को भी इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए।
जी नाजरीन, सलमान गनी का आप तज्जिया जो है वो मुलाहिजा कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हर रोज़ इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी जलसे से खिताब करते हुए पाक फ़ौज और उसकी क़यादत को बिला वजह और गैर ज़रूरी तनकीद का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर में आला सतह की तकरीरों के हवाले से नुक्ताचीनी की, जिसको माहिरीन रियासती इस्तेहकाम के खिलाफ करार दे रहे हैं। बिल्कुल, माहिरीन रियासती इस्तेहकाम के खिलाफ करार दे रहे हैं। न सिर्फ बल्कि ये रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश करार दी जा रही है। आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हमेशा अपनी तकारीर में इसी अंदाज़ बयान को अपनाते हैं, इदारों को, रियासती इदारों को निशाना बनाते हैं। इसी हवाले से हमने रब्ता किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बताइएगा, इसी अंदाज़ बयान को अपनाया जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद की तकरीर आपने सुनी होगी, खिताब में उन्होंने एक मरतबा फिर पाक फ़ौज को ललकारा है, पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, क्या कहेंगे? देखें जी, ये खान साहब जब से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है, ख़ास तौर पर 1973 के आइन के बाद, कि एक हुकूमत को आइनी तरीके से हटाया गया है। तो उसके बाद लगता है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और वो हर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी और अनारकी हो कि ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाए। वो खुद भी पहले भी कह चुके हैं, जब उनकी हुकूमत जा रही थी, कि उन्होंने पैगाम दिया एस्टेब्लिशमेंट को कि या तो मेरी हुकूमत को बचाएं और तहरीक दम एतमाद को नाकाम बनाएं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया और अगर मेरी हुकूमत चली गई तो चले जाने के बाद उन्होंने फरमाया कि इससे तो बेहतर था कि मुल्क पे एटम बम गिरा दे। तो जो आदमी इस तरह की बात कर रहा हो, अब वो मुसलसल मुसल्लह अफवाज के अंदर जो हमारा एक डिसिप्लिन इदारा है रियासत का, जो मुल्क की सलामती के लिए एक अहम इदारा है, उसके अंदर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उसके अंदर दरार डालने, इश्तिहाल अंगेजी, बगावत पे लोगों को उकसाना, हुक्म उदूली पर उकसाना, उसमें लगे हुए हैं। और अब कल उन्होंने कमाल ही कर दिया है। अगर खान साहब को अलिफ बे का भी पता है आइन का, तो उनको पता है कि मुल्क के आइन के तहत सिर्फ मुल्क के वजीर आज़म का ये अख्तियार है कि मुकर्ररा वक्त पर नए आर्मी चीफ का तयन और तैनाती करे। ये मौका उनको भी मिला था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मुनासिब समझा कि मौजूदा आर्मी चीफ को तौफीक दे दे। तो जब वो ये काम कर रहे थे तो उन्होंने तो किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया, ना अपोजिशन से। अब जलसों में बैठकर आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगा तो बकौल उनके वो गैर मोबे वतन होगा और वो मौजूदा हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज पर उठा दिया है, जिसका उनको कोई हक नहीं है। और आज इनके जो नुमाइंदे हैं, जिनमें साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी है, जब आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल उठाया कि ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है और आप मुल्क को किधर लेकर जाना चाहते हैं, तो उस पर फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि ये एक सियासी बयान है और जज साहबान इसमें मुदाखलत ना करें। ये सियासी बयान नहीं है, ये आईनी मामला है और मुल्क के आइन के तहत सिर्फ वजीर आजम को ही अख्तियार है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं इमरान खान, और मेरा ख्याल है कि कौम को और कौम की जमातों को और सिविल सोसाइटी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही, कौम को और सिविल सोसाइटी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हर रोज़ इदारों को निशान बना रहे हैं और इस तरह की तकरीर करके इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके और मुतनाज़ा जो इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करके शायद वो इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं और दबाव में लाकर अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, जिन्होंने कहा कि कौम को और इसके साथ साथ जो इंसाफ के इदारे हैं उनको इसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसका नोटिस लेना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को इसका नोटिस लेना पड़ेगा, वरना
इस तरह के जो बयानात हैं वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, तौहीन अदालत का केस तो इस वक्त भी इमरान खान के खिलाफ जारी है अदालत उज़्मा में, और इस जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने खिताब के दौरान ललकारा है, तनकीद का निशाना बनाया है पाक फौज पर, इस पर भी माहिरीन का कहना है कि अदालत उज़्मा को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कम्बर शहदाद कोर्ट में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाके कम्बर शहदाद कोर्ट के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनसे उनकी सूरत हाल जानी, उनके मसाइल सुने, उनको उनकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई, उनसे इजहार यकजहती भी किया, और इस मौके पर उनमें इमदादी चेक्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उनको उस इलाके में होने वाले नुकसानात के हवाले से भी आगाह किया गया, और उसके बाद जो इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं उस पर भी उनको ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतासिन इलाका से इजहार यकजहती भी किया। आप मिल के इंशाल्लाह आपकी सिंध हुकूमत भी हम भी मिल के आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बीमार है? क्या बीमार है? डॉक्टर है इधर, डॉक्टर मैंने देखा कैंप बना हुआ है, उनका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। चीफ मिनिस्टर आप इधर डॉक्टर को दिखाएंगे कंबर से आगे ऊपर ये सारा पहाड़ी इंशाल्लाह। आप और की फसल लगाई? फसल क्या लगाई थी? चावल खराब हो गया सारा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, और आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। आपकी हम सिंध हुकूमत बराबर साहब मेरे साथ हैं, वज़ीर ख़ारिजा चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह मेरे साथ हैं, मैं हाज़िर हुआ, हम इकट्ठे आपको ये यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह हम मिलकर सब आपको सिंध हुकूमत वफाक मिलकर इंशाल्लाह आपकी पूरी जो भी खिदमत हो सकती करेंगे इंशाल्लाह। 25,000 रुपया फी ख़ानदान इस वक्त सिंध में तकसीम हो रहा है, बलूचिस्तान में तकसीम हो रहा है, KP में हो रहा है, जनूबी पंजाब में हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, और इंशाल्लाह फिर आपको इसके अलावा हम जो फसलों का नुकसान उसका अंदाज़ा लगाएंगे, और फिर वो मिलकर हम इसका आपकी इमदाद करेंगे इंशाल्लाह। फ़िक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त आई है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह साईं खैर करेगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। ठीक है साईं? मानी मानी खा दो, आ दो। हाँ, ये आपका बच्चा बीमार है? क्या हो गया? क्या हो गया आपको? बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा कितने डायरिया के कितने हैं? ये डेटा सर लेस देन 5 इयर्स जो है हमारे पास है 26 ऑफ लास्ट मंथ, तो ये कल तक की डेटा है हमारे पास। और सर ग्रेटर देन 5 इयर्स जो एज है उनकी 19,400 और 82 है हमारे पास पेशेंट जो यहाँ पे, और मलेरिया के हैं 1063 एंड स्किन डिजीज़ के हैं हमारे पास आए 7,674 एंड ये जो है और हमारी 4 फिक्स कैंप्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और 11 जो है हमारी मोबाइल कैंप्स हैं वो जो ये पीपीई काम करती हैं। और तालका हॉस्पिटल गवर्नमेंट साइड से जो हम हैंडल करते हैं उसमें ज़्यादा बेटा पेट के मर्ज के आ रहे हैं। जो टोटल ओपीडी हुई है आज कल तक सर वो हुई है 28,310। और मलेरिया और दूसरा सर इसके केसेस मलेरिया मलेरिया भी है, और गैस्ट्रो है, RTI के भी पेशेंट्स बहुत सारे हैं। हमें इंशाल्लाह खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिलावल साहब आए हैं, बिलावल साहब वो तशरीफ लाए हैं, CBC भी आए हैं, तो बस इंशाल्लाह फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सब मेहनत करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। अभी हमारे पास नेबुलाइजेशन की मशीन पड़ी हुई है एम्बुलेंस में, तो हम नेबुलाइज करेंगे इन्हें, जो हमारे पास इन्फेक्शन है उसके लिए देंगे, और पेनाडोल हम जो है ना जो बुखार है उसके लिए हम मेडिकेशन देंगे।
अकरम पाकिस्तान नेवी ने 2 वीक से यहाँ पे डिप्लॉयड है। सर हमारे जो है डिफरेंट मिशन है यहाँ पे, हम सर्च एंड रेस्क्यू हो रहा है और साथ मेडिकल हम जो है ना मेनली सर हमारा फोकस वो एरिया है जहाँ पे बाय रोड जो है एक्सेस नहीं है। हम पाकिस्तान नेवी, SFG और मरीन के थ्रू बोट्स के ज़रिए 8, 10, 15 किलोमीटर अंदर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो गाँव में अभी तक वो बाहर आना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे, हमारा माल मवेशी यहीं पर। वहाँ पर जाकर सर हम अपना मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश करते हैं, पेशेंट देखते हैं। सर मोर देन 5000 पेशेंट हम देख चुके हैं, जिनमें से 500 क्रिटिकल पेशेंट थे, उनको हम बाय बोट के फिर हम रोड पर ला के उनको सर हमने जो ट्रस्ट केयर हॉस्पिटल है वहाँ पर हमने उनको शिफ्ट करवाया सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी तक हमें सक्सेस कर रही है मेडिसिन के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हमारा मिशन बहुत अच्छा जा रहा है। आप अल्लाह ताला खबर दे बेटा आपको चला गया दुनिया से, वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपकी पूरी हमदर्दी में आपके साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपको मोहम्मद अमीन की केर गुजारे बता दो खबर दे उनकी जन्नत अब्दुल लतीफ आपको भाई अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आपको सब घर वालों को सब्र जो अल्लाह आपको सब्र दे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं। कंबर शहदाद कोट में वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है, उनकी दादरसी की है और उनकी मुश्किलात के इज़ाले के लिए उनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी भी कराई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए गए हैं।